Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is the important organs of the governments, which include legislature, judiciary and executive. So in today's class you are going to learn about these three organs of the government. You will learn about legislature, what is legislature and what are the functions of legislature and what are the different legislatures in the world. When we talk about executive, so the first question that might come to your mind, that what is executive, what are the types of executive and what are their functions and the importance of executive in a government. And then we will talk about judiciary. What is the role of judiciary, the importance of judiciary in a state, in a government, what are its functions, so on and so forth. So in this way, today's class is going to be really meaningful and fruitful for you guys, because you are going to learn about all these three important organs of the government. And once you understand these three organs, you will understand the whole structure of government. For example, the government of Pakistan, how does it work? What are the functions of different organs, like Prime Minister? What is the function of Prime Minister? Likewise, you will learn about President, Ministers, Chief Justice. You will learn about the MNAs and MPAs and Parliament and Senate, National Assembly, the voting system, direct democracy, indirect democracy, referendum. So in today's class, you are going to learn all this structure of government. And what is the system of USA, parliamentary government, presidential government, right? What are their differences? And once you have this knowledge, you will be able to write it down in your paper, and this will make your answers academic. I'm talking about other than political science, the subjects other than political science. For example, Pakistan studies or Pak affairs, and you are discussing and talking about the governments, different forms of governments. You will be able to write it in terms of political science, in theories of political science, and your answer will be different from those members whose subject is not political science and who do not understand these terms. So understanding, comprehension, assimilation of all these terminologies will help you in current affairs, when you are discussing global issues, political issues, when you are talking about the systems of government, the powers of president, the powers of prime minister. So in this way you get knowledge and then you apply it in the way you want. And remember, knowledge wants and
requires connectivity. Like last week, or we have yesterday we had the test, political science first weekly test, and if you have noticed, I asked the question about the theoretical background of a term like law. What is law? And then I ask about the real implications and applications, how to apply it, the same knowledge, how to apply it in your own country, like Pakistan. I just wanted to sensitize you that while reading all these stuff, you have to focus on the application of all the theories and terminologies that you are learning right with me now and from the books assigned to you and suggested to you. So you all have got, those who attempted the paper yesterday, they are really brave, courageous, studious. I appreciate them for the attempt, but now here will come that you need a lot of improvement. You need how to start a sentence and how to make it a bit impressive, persuasive, how to make it catchy. There will be some sentences that you can use, and I'm going to tell you, not now, but when I announce the result. So in the result, I'll be discussing your weaknesses, pitfalls in your answers. And I hope you will improve a lot after that, lecture. And you will definitely be a different writer, because CSS is all about writing. You might be having lot of knowledge. You might be having grammar skills and what we say that vocabulary. You might be having vocabulary as well, idioms, proverbs, right? And knowledge of political science and so on and so forth. And you will be familiar with the current affairs and Pakistan affairs. But if you cannot pin it down on a piece of paper in a convincing and realistic way to make someone, for example, examiner, to make examiner understand, if you cannot make him or her understand, he or she will be reading your stuff but might not be able to understand a single sentence. So how to present the essence of the answer in an effective way, it requires some skills, communication skills, some terminology, some simplicity, brevity. Your sentences must be concise. In political science, then I'm going to give you a lot of practical. Even if I am going to write the answer, I will even show you the answer as well, that how to write an answer, how to start, how to carry on the arguments, how to convince the examiner, how to apply this knowledge that I am going to tell you on Pakistan and the rest of the systems of the world. And once you understand this skill, believe me, you are going to score high and high, even better than all the aspirants. But on the condition that you must have writing skills. And writing skills, what is writing? First understand this one. What is writing? क्या writing है क्या चीज़? What is communication? Communication क्या है? मुसीबत ये है
हम पेपर में राइटिंग एंड टॉकिंग दो चीजें हैं, एक है राइटिंग और दूसरा है टॉकिंग, बातें करना। राइटिंग एंड टॉकिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बातें करना और लिखना। अब मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान पर बातें करें, तो मेरे ख्याल में 24 घंटे आप बात करती रहें या करते रहें, कोई आपको चुप करने वाला नहीं होगा। दैट मच टॉक यू हैव, इतनी बातें एक इंसान कर सकता है। बातें अलग चीज है, लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि लिखे, पाकिस्तान पर लिखे, और आपका लिखना परसुएसिव हो, आर्गुमेंटेटिव हो, एकेडमिक हो, फिर आप हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, अब मैं क्या लिखूं, पाकिस्तान पर क्या लिखूं, मुझे तो एक सेंटेंस भी नहीं आता। जैसे स्टूडेंट से 2020 और 19 में पूछा गया कि पाकिस्तान के टूरिज्म पर लिखें। अब टूरिज्म पर वो एक ऐसे नहीं लिख सकते, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर लिखें और वो इकोनॉमी पर बात ही नहीं कर सकते। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड राइटिंग। तो जब मैं पेपर चेक करता हूं, मैं देखता हूं दैट यू आर नॉट राइटिंग, यू आर टॉकिंग। क्या आप बस मेरे साथ बात कर रहे हैं जी। विद द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बर्थ से ही ये मसाइल है हमें। बड़ा खूबसूरत सेंटेंस आप लोगों ने सीखा है। पाकिस्तान को सारे के सारे मसाइल जो है इंसेप्शन में, विद द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे मसाइल पाकिस्तान को मिले। ये सेंटेंस पूरे सब ने सीखा है, बड़ा खूबसूरत सेंटेंस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? बातें करने, अब आप साथ में ये बताएं कि ये बात कही किसने है, किस किताब में आपने पढ़ी है। अब मैं ये बात कह देता हूं कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़े, तो आप शायद आप में जो लोग मुस्लिम हैं वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम नहीं है वो कहेगा कि क्यों पढ़ूं जी, आप कौन है कि मैं तुम्हारी बात मानूं। ठीक है, मैंने कोई हवाला ही नहीं दिया। अगर मैं ये बात इस तरह कह दूं, कि कुरान मजीद में जो मुसलमानों की आसमानी किताब है में लिखा है कि आप 5 वक्त नमाज पढ़े, हाँ, फिर ये जो है, जो शख्स भी होगा, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, जब वो चेक करेगा तो इसी तरह जो है एग्जामिनर खुश होता है कि हाँ इसने तो कुछ हवाला तो दिया, ये इसकी अपनी बात नहीं है, इसने कुरान का हवाला। इसी तरह जब आप बात करते हो पॉलिटिकल साइंस में, आप कहते हो कि अ ह्यूमन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, एनिमल है, पॉलिटिकल एनिमल है, आपने कह दिया। अच्छा, क्यों कहा? अब आप इसको प्रूव किस तरह करोगे? और अगर आप साथ में ये लगा दे कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल अ मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, कि अरिस्टोटल के मुताबिक इंसान क्या है, एक पॉलिटिकल एनिमल है। एंड अरिस्टोटल सेज दिस एंड दैट। फिर आप अरिस्टोटल की जो बातें हैं कि इंसान ग्रेगेरियस है बाय नेचर, ग्रुप में रहना पसंद करता है, फैमिली बनाता है, ये वगैरह, ये सारी कहानी जब दोगे तब एग्जामिनर को मजा आएगा कि हाँ इसने कुछ पढ़ा है। अब सपोज आपने प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर बात करनी है पॉलिटिकल साइंस में, और आपने लिख दिया कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ठीक है, अच्छा है, अमेरिका में चल रहा है, ये है वो है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर है।
अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं, ये तो बातें हैं जो आप कर रहे हैं। और अगर आप साथ में ये बता दे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये एक थ्योरी है, दिस इज अ थ्योरी प्रोफाउंडेड आर गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू, इसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। क्यों दिया है ये भी वजह बता रहे, बिकॉज ही वॉज द आर्डेंट सपोर्टर ऑफ लिबर्टी, क्योंकि वो लिबर्टी को चाहता था। He was the supporter of liberty. That is why he propounded this theory that real liberty can be attained when every organ of the government, legislature, judiciary, executive is independent from each other. Individual will enjoy the complete liberty in such a state. और अगर आप लोगों को हिस्ट्री याद है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ वो इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में सारे खुश थे, इसका ताल्लुक फ्रांस से था और फ्रांस में सब खफा थे, टायरनी थी, लिबर्टी नहीं थी। और जो मॉन्टेस्क्यू था फिर उसने जो है कहा कि इंग्लैंड में द इंग्लिश आर हैप्पी because there is separation of power in the government system. अच्छा, Maha arrange it means every question start with reference. नहीं, ऐसी भी नहीं है। खैर ये मैंने ज़्यादा एकेडमिक पर जोर दिया, ज़रूरी नहीं है। मैं आई डोंट वांट टू किल योर ओन ओरिजिनलिटी, मैं आपकी ओरिजिनलिटी भी ख़त्म नहीं करना चाहता, बट एटलीस्ट आप जब एक सेंटेंस पास करते हैं तो उसके लिए कोई लॉजिक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, हाँ आप पहले 2-3 सेंटेंसेस जो है जनरल शुरू करें, फिर बीच में से आप लोग रेफरेंसेस हवाले देते रहें। बुक का हवाला भी आप लोग देख सकते हैं और ये जो राइटर होते हैं उसका हवाला भी आप लोग दे सकते हैं। कोई और बात हो तो आप लोग जो है साथ में हवाले देते रहे या इवन लॉजिक देते रहे। नाम भी याद नहीं है, बुक का नाम भी याद नहीं है, राइटर का नाम भी याद नहीं है, तो फिर लॉजिक इस्तेमाल करें। लॉजिक का मतलब क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी, इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए। इससे क्या होता है, इट इंश्योर्स द कंप्लीट लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। कैन वी स्टार्ट अ क्वेश्चन विद डिफिनीशन? हाँ हो सकता है, बट ये कुछ ऐसे सवालात है ये जो आप लोग पूछ रहे हैं मुझसे, it depends on the nature of the question. अब सपोज एक क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो अब आपने डिफिनीशन से शुरुआत करनी है। व्हाट इज लॉ? ठीक है, जैसे कल मैंने आप लोगों को दिया था कि व्हाट इज लॉ, तो वहां पर आप डिफिनीशन से शुरू करें। ठीक है, और फिर जो है बात करते रहें, ऐसा हो सकता, बट इट डिपेंड्स ऑन द नेचर। अगर जनरल क्वेश्चन किया गया है, जनरल क्वेश्चन, तो उसको भी आप लोग थोड़ा बहुत जो है एकेडमिक बनाएं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी, चूंकि आप लोगों को आज मैं गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ा रहा हूं, सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी से लेट्स शुरू भी कर लेते हैं लेक्चर भी। तो हमारे पास एक थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, वो थ्योरी दी है किसने? मॉन्टेस्क्यू ने दी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है, हमारे पास गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ये लिखे। अगर आप लोगों का सेकेंड अटेम्प्ट है तो आप लोगों को फिर आसानी से समझ आएगा आज का लेक्चर। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये उसके लिए मैं बता रहा हूं, उन बिगिनर्स के लिए जिन्होंने कभी ये नाम भी नहीं सुना है कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है और जुडिशरी क्या है, ये उन लोगों के लिए है। मैं आप लोगों को सिंपल आसान अल्फाज में बता देता हूँ। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के फिर 3 अहम पिलर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, हिस्से होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जिसके बुनियाद पर हुकूमत बनती है, गवर्नमेंट बनता है। 3 ऑर्गन्स, पहला क्या कौन सा है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है।
दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? दैट इन्फोर्सेस द लॉ, कानून को इन्फोर्स करता है, लोगों को मजबूर करता है कि हां आप कानून फॉलो करें। और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? इंटरप्रेट्स द लॉ, प्रोटेक्ट्स द लॉ। वही कानून जो बनाया गया है उसको इंटरप्रेट भी यही लोग करते हैं, उसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी जुडिशरी का काम है। ये इंसाफ देना और वगैरह वगैरह, ये आगे चलकर आप लोगों को अलहदा अलहदा तीनों का जो है। अच्छा, ये तीन आर्गन्स हैं अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू, अकॉर्डिंग टू सेपरेशन थ्योरी जो है, सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी। ये तीनों आर्गन्स जो है क्या हो? इसमें तकसीम हो, सेपरेशन हो। ये पावर जो हुकूमत की ताकत है एक इदारे के पास नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कहता है कि लिबर्टी के लिए, इंसान की आजादी के लिए, खुशी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, तरक्की के लिए तीनों का अलग होना लाजमी है। यह हुकूमत की जो ताकत है तीन हिस्सों में तकसीम करे। लेजिस्लेचर को अपनी ताकत दे रहे, जुडिशरी को अपनी और एग्जीक्यूटिव को अपनी। तीनों को नहीं चाहिए कि तीनों के तीनों पावर्स एक इदारे के हाथ में हो, एक शख्स के हाथ में हो। इससे डिक्टेटरशिप आएगा, इससे टायरनी आएगी, मोनार्की आएगी और लोगों की आजादी खत्म हो जाती है। फिर हिटलर जिस तरह कहता है कि बस वर्शिप द हिटलर, के हिटलर की इबादत करो जनाब, वही सब कुछ है। फ्रांस का जो किंग था, किंग लुइस, वो कहता है आई एम द स्टेट, मैं ही स्टेट हूं। मतलब कोई कानून कुछ भी नहीं है, बस जो मैं कहता हूं वही सब कुछ है, मैं ही पाकिस्तान हूं। तो वहां पर आजादी खत्म हो जाती है, डर रहता है हर वक्त, तरक्की खत्म हो जाती है, क्योंकि एक शख्स जो कहता है फिर वही होता है। तो मॉन्टेस्क्यू कहता है कि एक शख्स के पास तमाम के तमाम पावर्स नहीं होने चाहिए। इवन तीन आर्गन्स हैं, दो के पावर्स भी अगर एक के पास हो तब भी जो है, मिसाल के तौर पर लेजिस्लेचर कानून साज इदारा है, पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के पास अगर कानून बनाने का इख्तियार भी हो और कानून अप्लाई करने का भी इख्तियार हो, तो फिर तो पार्लियामेंट जो है पूरा मुल्क का खुदा बन जाएगा। अगर आप सारे के सारे इख्तियारात जो है जुडिशरी को देते हैं कि जनाब बस अदलिया इंसाफ करने वाला इदारा है, जज साहब, काजी साहब बैठा है और सारे के सारे फैसले इन्हीं को दे रहे कि बस ये फैसले करे, तो फिर तो जज जो चाहेगा करेगा। जैसे पाकिस्तान में इवन हुआ भी है, हम उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल एक्सेसिवनेस इन पाकिस्तान। ये इन पाकिस्तान लफ्ज बड़ा अहम है, इसलिए मैंने बता दिया कि यहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म को गलत तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इवन वजीर आजम तक को घर भेज दिया गया है, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, सुमोटो एक्शंस लिए जाते थे। हॉस्पिटल में जज साहिब जाता था, जनाब ये डैम बनाने का ठेका भी उसने लिया था। ये पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल था। जुडिशरी जो है उसको इतना पावर मिला कुछ इदारों की वजह से कि फिर उसका गलत इस्तेमाल। इवन असम्बलीज जो है 1955 में पूरी असम्बली को खत्म कर दिया था विद द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, बस ताकि जब जरूरत पड़े, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, बस जरूरत है जनाब इस असम्बली को खत्म कर दे, पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत को ख़त्म कर दे, डिक्टेटरशिप ले आए, ये वगैरह। इतना जो है गलत इस्तेमाल जुडिशरी का हुआ। तो मॉन्टेस्क्यू कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, आज़ादी के लिए चाहिए कि ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट हो, पावर में एक दूसरे से आज़ाद हो। जुडिशरी का काम क्या है? सिर्फ हिफाजत करना, मसाइल हल करना, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करना, लोगों के राइट्स की हिफाजत करना। जुडिशरी का काम यह है कि वो आइन को, कानून को इंटरप्रेट करे ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना करे।
अच्छा, फिर कानून साज इदारा जो कानून बनाता है, तो बस उसका काम सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना है। पार्लियामेंट को ले लें, नेशनल असेंबली और फिर सेनेट होता है उसमें। अच्छा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जैसे प्राइम मिनिस्टर, सदर साहब और इवन पटवारी तक, ये सब लोग क्या करेंगे? फिर जो कानून बनाया गया लोगों पर उसको अप्लाई करेंगे। तो ये सब कुछ जो है हर एक का अपना अपना काम होगा। तो मॉन्टेस्क्यू कहेंगे कि इसमें लोग खुश होंगे। अच्छा, एक तो ये है। अब सवाल ये है वेदर कंप्लीट सेपरेशन इज पॉसिबल और नॉट, कि मुकम्मल तौर पर सेपरेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। क्या हम ये तीनों ऑर्गन्स जो है मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं? तो फिर भी बात, या इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फरहान दाजिब लोअर हाउस इस नेशनल असेंबली को कहते हैं और अपर हाउस ये सेनेट को कहते हैं। आगे चलकर मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें इसके लिए। अच्छा, बात है कि क्या तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह सकते हैं? मुकम्मल इंडिपेंडेंस पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नो। कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज आइडियल एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इवन बिकॉज देयर विल बी क्लैश ऑफ पावर। अगर तीनों को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तीनों बराबर है, तो फिर लेजिस्लेचर की बात जो है एग्जीक्यूटिव नहीं मानेगा और एग्जीक्यूटिव की बात जुडिशरी नहीं मानेगी और जुडिशरी की बात जो है लेजिस्लेचर नहीं मानेंगे, और इसी तरह जो है तीनों एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कंप्लीट सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मॉन्टेस्क्यू एक और पॉइंट सजेस्ट करता है और उसको हम कहते हैं चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। कि ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो होता है, मुल्क का सदर, मुल्क का वजीर आजम, पार्लियामेंट्री निज़ाम में या अमेरिका के जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में उसको हम कहते हैं सदर। तो सदर साहब जो है आज़ाद हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जवाबदेह भी है, उस पर अदम एतमाद का वोट भी पार्लियामेंट से पास हो सकता है। तो ये एक चिक है ऑन द एग्जीक्यूटिव। इसी तरह अदालतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानून को प्रोटेक्ट करती है और इंटरप्रेट करती हैं, कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने वाले कौन है फिर? ये जनाब हमारे पास पार्लियामेंट होता है। फिर पार्लियामेंट में हमारे पास सेनेट होता है और लोअर हाउस नेशनल असेंबली होती है। पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। और दोनों से जब पास हो जाएं, फिर जाकर प्राइम मिनिस्टर उस पर जो है और सदर साहब उस पर अप्रूवल देता है, तब जाकर ये कानून बनता है। तो वहां पर भी थोड़ा बहुत क्या है, एक चिक मौजूद है। अगर एग्जीक्यूटिव उस पर साइन ना करे, अप्रूवल ना दे और उसको वापस कर दे कि जनाब इसमें ये गलतियां है, इसको ठीक करके वापस मेरे पास भेज दे, तो पार्लियामेंट पर भी एक चेक मौजूद है। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं एक टर्म है। अदलिया के पास, अदालत के पास ये क्वालिटी है कि वो किसी भी कानून को जो पास हो जाए लेकिन वो आईन के खिलाफ हो, तो फिर जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी उस कानून को रद्द कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है। अल्ट्रा वायरीज उसको एक टर्म है, ये इस्तेमाल होता है। तो ये सब कुछ जो है अकॉर्डिंग टू मॉन्टेस्क्यू, ये चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है जब होगा और सेपरेशन ऑफ पावर जो थ्योरी है ये होगी, अंडर द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, देन इंडिविजुअल्स विल हैव द लिबर्टी, फिर उनकी लिबर्टी आ सकती है। अच्छा, ये सिस्टम अगर आप लोग प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि किस मुल्क में प्रैक्टिकली मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी अप्लाई होती है, सो दैट इज अमेरिका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, वहां पर ये मुकम्मल तौर पर
मौजूद है। लेकिन उस पर एक क्रिटिसिज्म ये है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है it does not ensure the liberty, rather liberty is in the spirit of the people. The people who love liberty, they want liberty, they strive to achieve liberty, they have liberty. और फिर उसकी मिसाल मैं इंग्लैंड की देता हूं कि इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर्स की थ्योरी अप्लाई नहीं होती, वहां पर नहीं है, लेकिन वहां पर लोगों को लिबर्टी हासिल है। बिकॉज द पीपल ऑफ इंग्लैंड हैव द स्पिरिट फॉर द लिबर्टी। वो चाहते हैं, स्पिरिट है उसमें। अदलिया वहां पर आजाद नहीं है, लेकिन वहां के लोग वहां का अदलिया जो है उसको कोई छेड़ता भी नहीं है। ज्यादा पावरफुल इंसान प्राइम मिनिस्टर होता है वहां पर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इंग्लैंड में गलत अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत नहीं करता कि लोगों की आज़ादी ख़त्म कर दे। तो ये थोड़ा सा एक क्रिटिसिज्म भी था कि separation of powers theory does not ensure liberty, though up to some extent Montesquieu is right, and this is applied in America, and now you can see American system is an ideal system for the rest of the world. बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, वहाँ पर लोग खुश भी हैं, आज़ाद भी हैं, और एक ज़बरदस्त हुकूमत है उन लोगों की, एक ज़बरदस्त डेमोक्रेसी भी है। तो वहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त भी चल रहा है। लेकिन ये नहीं है कि खामखा जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी तो लिबर्टी आएगी। लिबर्टी का ताल्लुक इंसानों से भी है, आपसे भी है, मुझसे भी है। तो पाकिस्तान में कुछ लोग लिबर्टी को पसंद ही नहीं करते, तो लिबर्टी फिर कहाँ से आए? सही। एनी हाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ द पीपल। अब आते हैं एक टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है? कानून साज इदारा। इट मेक्स द लॉ। ठीक है, ये साथ में लिख दीजिए, एक सेंटेंस जो है ये समझ आ जाए, सो यू विल एंजॉय इट। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कानून साज इदारा। इट मेक्स द लॉ, कानून ये बनाता है। लेजिस्लेचर जो है कानून बनाता है। लेजिस्लेचर के पास मुख्तलिफ फंक्शंस है। एक, कानून बनाने का फंक्शन भी लेजिस्लेचर के पास होता है। पाकिस्तान में उसको पार्लियामेंट कहते हैं, और मजलिसी शूरा भी कहा जाता है। साथ में इंग्लैंड में भी पार्लियामेंट कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। तो दुनिया में मुख्तलिफ पार्लियामेंट है। ये MCQs के लिए आप लोग अगर CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये भी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ टर्की, या व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ चाइना, कि चाइना के पार्लियामेंट का क्या नाम है, ये वगैरह। तो फिर ये नाम जो है, जो मशहूर मुल्क है उसके नाम, पार्लियामेंट के नाम जो है, जैसे अमेरिका का कांग्रेस है, ये नाम आप लोग रटा लगा ले, याद कर ले, जिस तरह भी आप लोग करते हैं। कानून बनाता है, ठीक है। लेजिस्लेचर का एक फंक्शन ये है। लेजिस्लेचर का दूसरा फंक्शन, पार्लियामेंट का दूसरा फंक्शन ये है, बड़ा अहम फंक्शन है, टू प्रिपेयर द बजट। कि मुल्क के जो अखराजात हैं, कितना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, जनरेट करेगा, फिर कितना लगाएगा। सही, ये जो है इन लोगों का काम होता है, पार्लियामेंटेरियंस का काम होता है। और पार्लियामेंट में जब जो है बजट पेश होता है और वहां से ही फिर पास होता है। तो एक जो मुल्क का जो पर्स है, खजाना है, वो भी लेजिस्लेचर के पास होता है, पार्लियामेंटेरियंस के पास होता है। अच्छा, एक तो ये फंक्शन हो गया इनके पास। अहम फंक्शन ये है। कभी कभार इनके पास जो है जुडिशरी के इख्तियारात भी आ जाते हैं। ये इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। जैसे कि
इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड है, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो हाईएस्ट, जिस तरह पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है तो वहाँ पर जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब अपर हाउस, सेनेट इन इंग्लैंड। तो जुडिशरी का काम भी ये लोग कभी कभार करते हैं। कभी कभार कानून जब बनाते हैं तो जुडिशरी के लिए भी कानून बना लेते हैं, और जजेस को अपॉइंट भी यही लोग करते हैं। अमेरिका में तो यही होता है, तो ये फंक्शंस भी हैं इनके पास। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सेनेट के जरिए, खासतौर पर अमेरिकन सिस्टम में सदर जो भी बड़े अपॉइंटमेंट्स करता है, किसी मुल्क के लिए जो है कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, वहां पर तो सेक्रेटरीज होते हैं अमेरिका में, यहाँ पर नाम मिनिस्टर दिया जाता है, या जो है आर्मी चीफ वगैरह हो तो वो जो है विद द कंसेंट ऑफ सेनेट होता है। तो इसके बड़े अहम जो है इख्तियारात हैं। अच्छा, इसका जो सिस्टम है फिर दो तरह का है। एक है यूनिकैमरल, उसमें एक हाउस होता है, और दूसरा है बाईकैमरल। बाईकैमरल मतलब दो हाउसेस उसमें होते हैं। आपके बुक में मेरे ख्याल में चैम्बर लफ्ज यूज हुआ है, 2 चैम्बर्स होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, या नेशनल असेंबली और सेनेट, मुख्तलिफ नाम है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स है और दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। अमेरिका जो कांग्रेस है वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली है, लोअर हाउस, और अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं बाईकैमरल, मतलब दो हाउसेस उसमें होते हैं। अच्छा, इसके बाद सवाल यह है कि दोनों में से कौन सा सिस्टम बेहतर है, बाईकैमरल या यूनिकैमरल? फरहान दाजेब, हु मेक्स द लॉज? आई मीन लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटर्स जितने भी होते हैं उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटर्स। मिनिस्टर्स भी होते हैं, और अगर पाकिस्तानी लैंग्वेज में बता दूं और पाकिस्तानी सिस्टम का, तो जितने भी MNAs होते हैं जो नेशनल असेंबली में बैठे होते हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और डेफिनेटली मिनिस्टर्स होते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर तक उसमें शामिल होता है। अच्छा, तो बाईकैमरल का जो मकसद है और फायदा है वो ये है कि एक हाउस से, मतलब लोअर हाउस से कानून पास होता है तो सेनेट जाता है, अपर हाउस जाता है, और अपर हाउस जो है उसको रिवाइज करता है। उसके पास उसका जो फंक्शन है वो है रिवाइजरी बॉडी का फंक्शन, दैट इज अ रिवाइजरी बॉडी। सेनेट क्या है? रिवाइजरी बॉडी, मतलब जो बिल पास होता है या जो एक्ट पास होता है, सेनेट उसको जो है देखता है। तो इसका मतलब क्या है? जो हेस्टी डिसीजन है, हेस्टी डिसीजन जो जल्दबाजी में किया गया, उसको डिस्कस करने के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, और जो हेस्टी लेजिस्लेशन, हेस्टी कानून साजी है वो भी रुक जाती है। तो एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा फायदा यह है कि प्रेशर ऑफ वर्क जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। अब एक शख्स है, एक काम करता है तो उस पर ज्यादा प्रेशर होगा, अगर वही काम 2 लोग करें तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इसी तरह जब एक कानून बनाया जाता है तो नेशनल असेंबली के लोगों पर पाकिस्तान में थोड़ा सा कम प्रेशर होता है, क्योंकि वो तो यही सोचेंगे कि जल्दी में हम कर ले। ऊपर एक और जो है हाउस बैठा हुआ है, वहां पर उसको देखा जाएगा, परखा जाएगा, और फिर वो जो है वो कानून जो है पास होगा। अगर गलती हुई तो दोबारा हम उसको ठीक कर लेंगे। डिबेट का टाइम भी मिल जाता है, इवन इस दौरान लोगों को भी पता चल जाता है कि फला कानून बनाया जा रहा है, मीडिया के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए, और फिर मुख्तलिफ जगहों पर उस पर डिस्कशंस होती हैं, तज्जिए होते हैं, और हुकूमत को पब्लिक ओपिनियन का भी पता चल जाता है कि हाँ ये कानून जो हम बना रहे हैं ये ठीक है या गलत है। तब जाकर जो है
जो हेस्टी लेजिस्लेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म ये है कि एक डिले आ जाता है, एफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी एक काम हो, बस ख़त्म हो, ये भी। दूसरी बात यह है कि जब एक कानून पास होना है तो दो लोग आपने क्यों बिठाए हैं। एक और जो है एक काम के लिए दो लोग। दूसरा एक क्रिटिसिज्म, जो अहम क्रिटिसिज्म है वो ये है कि जो सेनेट है दैट इज सुपरफ्लुअस। ये बिल्कुल सुपरफ्लुअस है, फजूल किस्म का एक सिस्टम है। किस तरह? अगर लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के बराबर पावर्स हैं तो फिर दूसरे हाउस की जरूरत ही क्या है? एक बात, या एक के ज्यादा इख्तियारात है और दूसरे के कम है। मिसाल के तौर पर लोअर हाउस जो नेशनल असेंबली होती है उसके इख्तियारात ज्यादा है और जो सेनेट है उसके इख्तियारात कम है। तो जब इख्तियारात ही कम है तो फिर भी जो है वो तो जाहिर बात है, वो तो नेशनल असेंबली की मानेगा, तो फिर भी जो है उसका रोल खत्म हो जाता है। इसकी मिसाल मैं कॉलेज प्रिंसिपल की दूंगा। कॉलेज में जो प्रिंसिपल होता है और एक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो वाइस प्रिंसिपल तो बराए नाम होता है, सारे के सारे इख्तियारात तो प्रिंसिपल के पास होते हैं। तो इसी तरह जो है एक प्रिंसिपल इदारा जो है वो लोअर हाउस होता है, ज्यादा पावरफुल। खासतौर पर पाकिस्तान में भी, और ये दूसरा क्या है, इंग्लैंड की मिसाल, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स जो है लोअर हाउस वो ज्यादा पावरफुल है। फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल कैबिनेट होता है। पाकिस्तान में भी यही है कि मिनिस्टर जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। इवन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट जो हमारा है सदर साहब, ही इज ओनली अ नॉमिनल हेड, ही डजंट हैव पावर्स एट ऑल। उसके पास पावर्स ही नहीं है, सारे के सारे पावर्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। तो लोग यही एतराज करते हैं कि दिस इज द वेस्टेज ऑफ मनी, द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो फिर आते हैं यूनिकैमरल की तरफ। कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसे टर्की ले लें, इवन न्यूजीलैंड भी अभी जो है वो भी पहले बाइकैमरल था, अब यूनिकैमरल बन गया है। यूनिकैमरल का जो है कास्ट भी, अब आपके पास सेनेट ना हो तो वो अखराजात भी बच जाते हैं, ठीक है। साथ में जो है यूनिकैमरल का फायदा यह है कि लेजिस्लेशन भी जल्दी जल्दी हो जाती है और इफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। वो कानून जो एक साल में पास होगा फिर वो 5-6 महीने में पास होगा, जल्दी से बात खत्म हो जाती है। तो यूनिकैमरल का तो ये फायदा है। अच्छा, यूनिकैमरल का नुकसान क्या है? यूनिकैमरल का नुकसान फिर ये है दैट विल लीड टू द डिक्टेटरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में एक ही हाउस होगा तो फिर वो जो चाहेगा करेगा, रिवाइजरी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्रेशर ऑफ वर्क जो मैंने कहा था कि वो से कम हो जाता है, वो भी फिर बढ़ जाता है यूनिकैमरल सिस्टम में। लेकिन अब आते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम चलेगा। तो लोग ये सजेस्ट करते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, कि बड़ा मुल्क हो जिसमें फेडरेशंस हो, मतलब यूनिट्स हो, जैसे सूबे हैं, तो वहां पर बाइकैमरल सिस्टम ज्यादा मौजू है। और जो छोटे ममालिक हैं तो वहां पर यही जो है यूनिकैमरल हो, ठीक है। बाइकैमरल में ये होता है कि हर एक सूबे को, माइनॉरिटी वगैरह को रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है इन द पार्लियामेंट, खास तौर पर सेनेट में। अब अमेरिका की बात करूं तो वहां पर 50 स्टेट्स है और 50 स्टेट्स में सेनेट के जो सीट्स है वो है 100। हर स्टेट से जो है 2 मेंबर्स, चाहे छोटा स्टेट हो बड़ा स्टेट हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको मिली हुई है इन अमेरिकन सेनेट। इसी तरह पाकिस्तान में भी हर सूबे से जो है ये 24 मेंबर्स जो है लिए जाए, चाहे बड़ा सूबा है या छोटा सूबा है, तादाद सेनेटर्स की सेम होती है। तो एक फायदा ये होता है कि हर एक को जो है रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। अच्छा, अब आते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ। एग्जीक्यूटिव क्या करता है?
एग्जीक्यूटिव जो है, जो कानून लेजिस्लेचर बनाए एग्जीक्यूटिव उसको इन्फोर्स करता है, लोगों पर लागू करता है। उसमें हमारे पास आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सदर से लेकर नीचे पटवारी तक, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव है, कानून को इंप्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन ये है। अब सवाल एक और आता है कि एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स, आप लोग वैसे भी ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, सबके सब, तो आप लोग भी फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे, इस्टेब्लिशमेंट, सिविल इस्टेब्लिशमेंट इसका हिस्सा होंगे, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होंगे और एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होंगे। अब दोनों में फर्क क्या है? एक इलेक्शन के जरिए आता है तो दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जरिए आता है। एक 5 साल के लिए आता है और दूसरा जो है पूरी उम्र के लिए आता है। 60 साल उम्र तक जो है वो एक सिविल सर्वेंट रहता है। सही। एक पॉलिटिकल इदारा है तो एक जो है पब्लिक सर्वेंट होता है या जो है एग्जाम के जरिए आया होता है। एक के फैसले पॉलिटिकल होते हैं, मतलब वो कानून बनाता है। दूसरा जो होता है, जैसे ब्यूरोक्रेट ले ले, तो वो इसी कानून को फिर अप्लाई करता है। ये आप लोग देख रहे हैं कि कमिश्नर साहिबान जो है इस कोविड-19 में कितने ज्यादा इफेक्टिव और क्या है, एक्टिव, प्रोएक्टिव इवन हुए हैं। दुकानें बंद करो जी, ये स्कूल सील करो और ये करो वो करो। तो ये क्या है, जो कानून बनाया गया कोविड-19 की वजह से, इमरजेंसी की हालत की वजह से। अब ये जो सीएसएस के जो मेंबर्स हैं, कमिश्नर साहिबान, ये उनको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और लोग भी मान रहे हैं, डरते भी हैं इन लोगों से। पुलिस को ले ले, पटवारी, इवन तहसीलदार, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। तो ये जो है एक का फंक्शन जो है पॉलिटिकल है, जैसे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है एग्जीक्यूटिव है, लेकिन उसका ज्यादा फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल है, वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और इसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ये रियल में जो है एक कानून को इंप्लीमेंट करता है और इन्फोर्स करता है लोगों पर। आज के दौर में, मॉडर्न दौर में, उसको फोर्थ ऑर्गन ऑफ द स्टेट या गवर्नमेंट भी कहा जाता है कि 3 है, लेकिन 3 के साथ साथ ये चौथा जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, इसका बहुत अहम बड़ा किरदार होता है। अच्छा, ये भी हो गया। लेक्चर लंबा होता जा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस जल्दी जल्दी से बता देता हूं। एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि एग्जीक्यूटिव अब अमेरिका का जो सदर होता है तो उसके पास तो सब फंक्शंस है। फिर आप कानून भी बनाओ, जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है वो भी करो, ठीक। इवन जो है प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान की मिसाल ले लूँ तो बजट भी जब तैयार होता है तो उसकी अप्रूवल भी प्राइम मिनिस्टर से ली जाती है। सही। तो मुल्क का पर्स जो है वो भी इसके हाथ में होता है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो मिनिस्टर्स वगैरह, कैबिनेट होता है। अमेरिका का जो सदर है अपने लिए एक जो प्रेसिडेंशियल फैमिली इसको हम कहते हैं, और सेक्रेटरीज कहते हैं। वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं उसको नाम सेक्रेटरी दिया जाता है, याद रखें, उसको मिनिस्टर नहीं कहते हैं। पाकिस्तान में मिनिस्टर्स कहा जाता है, इंग्लैंड में, इंडिया में मिनिस्टर्स कहा जाता है। अच्छा, ये फंक्शन भी है। आर्मी जो है वो भी इसके अंडर काम करती है, उसकी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है। ये दूसरे ममालिक के साथ जो है वो भी एग्जीक्यूटिव के अपने फॉरेन रिलेशंस जो है, पाकिस्तान में कौन है वो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, शाह महमूद कुरैशी साहब, यही ये सब कुछ देखता है। विच इंस्टीट्यूशन आर इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव, तमाम के तमाम मिनिस्टर्स, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है। और फिर हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है, जैसे एजुकेशन का अपना मिनिस्टर है, हेल्थ का अपना है, और इंफॉर्मेशन का अपना होता है, डिफेंस का अपना होता है, फॉरेन अफेयर्स का अपना होता है, हेल्थ का अपना होता है। तो हर चीज़ का अपना, और ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। उम्र हयात आपको बता रहा हूँ,
अच्छा, कुछ एग्जीक्यूटिव रियल होते हैं, कुछ जो है नॉमिनल होते हैं। रियल वो है जिसके पास रियल इख्तियारात हैं, वो इस्तेमाल कर सकता है, किसी से डरता नहीं है, पूछता नहीं है। लाइक द एग्जाम्पल, टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, दैट इज रियल हेड ऑफ द स्टेट, and one is titular head or nominal head. Take the example of the king or queen of England and take the example of the president of Pakistan. तो ये बिल्कुल जो है वो है टिटुलर हेड है, इसके पास इख्तियारात नहीं होते, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट या एग्जीक्यूटिव होते हैं। किंग और क्वीन इंग्लैंड में जो है बराए नाम उसके पास तमाम के तमाम इख्तियारात हैं, लेकिन रियल में तमाम के तमाम इख्तियारात जो है मिनिस्टर्स के पास, कैबिनेट मेंबर्स के पास, और सबसे ज्यादा इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। अच्छा, अब आते हैं जुडिशरी की तरफ। तो जुडिशरी के पास भी जो है, जैसे मैंने कहा कि जो जस्टिस है, जो मुल्क में निज़ाम होता है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली और लिबर्टी अगर एक चीज इंश्योर कर सकती है, या हम कहते हैं कि जस्टिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्टेट, एक स्टेट की जो बुनियाद है वो जस्टिस है, इंसाफ है। एंड जस्टिस इज प्रोवाइडेड बाय द जुडिशरी। इंसाफ ये लोग देते हैं फिर लोगों को, लोगों के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल, द लिबर्टीज ऑफ द पीपल। जुडिशरी जो है इंसान की खुशहाली और हारमनी और पीस में एक अहम किरदार अदा करती है, डिस्प्यूट्स खत्म करती है। जुडिशियल रिव्यू के तहत, जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए जो कानून बनाया जा रहा है और वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो फिर जुडिशियल रिव्यू के तहत जुडिशरी जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोक्लेम करती है या करार देती है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसी तरह वो कानून खत्म हो जाता है। ये जुडिशियल रिव्यू पाकिस्तान में भी है और अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है हर मुल्क में नहीं हो सकती। मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, दोनों के हैं, ठीक है, वहां पर भी हिस्सा ले सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेशन के इख्तियारात भी हैं, जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ले ले। अमेरिका का प्रेसिडेंट असल में तो एग्जीक्यूटिव है, नाम भी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन अगर ये कांग्रेस को कहे कि जनाब फला कानून की जरूरत है, आप लोग इस कानून इसको बना ले, तो फिर जो कांग्रेस है, जो पार्लियामेंट है अमेरिका का, तो वो इससे इनकार नहीं कर सकता। तो इसके पास लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव दोनों इख्तियारात होते हैं। लेकिन मिनिस्टर्स और जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, साथ में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो रियल में उसको पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजी में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। अच्छा, और जुडिशरी के जो इख्तियारात हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करती हैं, लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, इंसाफ भी फराहम करती हैं। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा पाकिस्तानी सिस्टम को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा निज़ाम, उसको एक और तरीक़ेकार भी हम उसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि कानून में सब, एक प्राइम मिनिस्टर भी अदालत में खड़ा होगा और एक आम मजदूर भी जो है अदालत में उसी तरह खड़ा होगा, दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, एक ही जो 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 ड्यू प्रोसेस है उससे गुजारा जाएगा, उसको भी वकील रखने का हक है, और इसी तरह एक आम मजदूर को भी और एक प्राइम मिनिस्टर दोनों को जो है एक जैसा वकील रखने का हक हासिल है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की जो हायरार्की है ये डिफरेंट है। पाकिस्तान में अगर आप लोगों ने देखा हो, रिपोर्ट है इंटरनेशनल जुडिशरी, जो रिपोर्ट पेश किए जाते हैं, पाकिस्तान का जो नंबर है अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट 124वां मुल्क है,
अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के लिहाज से कि हम कितने पीछे हैं। 124वां नंबर है। यहां पर काबिल गौर काबिल जिक्र बात यह है कि अमीर के लिए एक कानून और गरीब के लिए दूसरा कानून। अमीर तो अपने लिए कोई भी बड़ा वकील कर देता है और गरीब बेचारा नहीं कर सकता। प्ली बार्गेन आ जाती हैं, जनाब नेब किसी शख्स को पकड़ लेता है, उसने जो है क्या किया होता है, 1000 करोड़ जो है करप्शन की होती है, और वो कहते हैं कि 500 करोड़ वापस ले ले और बस माफ कर दे, सब कुछ खत्म, केस खत्म। फिर वहां पर जुडिशरी कुछ नहीं कहती और ना ही कर सकती है। ये मैं आप लोगों के साथ, ये क्या है, असदुल्ला उन्नड़, एग्जैक्ट नाम जो है वो मुझे याद नहीं है। तकरीबन इंटरनेशनल जुडिशरी रिपोर्ट जो मैंने नाम लिया अकॉर्डिंग टू 2020, तो मैं आप लोगों के साथ क्लास के बाद जो है एक आर्टिकल शेयर करूंगा। उसमें एक नाम भी दिया है, डेट भी दिया है और नंबर सब कुछ दिया है। तो अगर आप लोग पेपर के लिए याद करना चाहते हैं तो फिर उस लिंक को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एनी हाउ, अगर आप लोग सिर्फ इतना भी लिख दे पेपर में, याद एग्जैक्ट नाम याद ना हो, तो आप इंटरनेशनल जुडिशरी रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 2020 लिख दे और साथ में फिर कहें कि पाकिस्तान इज रैंक 124 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 ममालिक में से इसका नंबर जो है इस नंबर पर आता है। तो फिर जो है आपकी जो आर्गुमेंट है वो एक्सेप्टेबल हो जाती है। अच्छा, हानिन कहते हैं माइट इज राइट। हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जुडिशरी जो है अपने गलत इख्तियारात, जो इख्तियारात उनके होते भी नहीं है वो भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। और ये किस तरह करती है, आर्टिकल 183 जो है 183(4) के तहत ये कहते हैं कि जनाब जुडिशरी के पास ये इख्तियार है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन जो होते हैं उसका काम और उसको प्रोटेक्ट करना जुडिशरी के पास है। तो जब जनाब कभी हॉस्पिटल में जाते हैं, जी ये पब्लिक का मसला है, तो इस सोमोटो इस पर लिया जा सकता है जाए, जैसे कि साकिब निसार ने किया था। तो उस वक़्त जो है CSS के पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो यूज है पाकिस्तान में गलत हो रहा है, आप एग्जाम्पल के जरिए इसको एक्सप्लेन करें। तो ये आप लोगों का टास्क भी हो गया। ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, 2-3 मिनट है। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लिए खास पोस्ट बनाया है, इसी ग्रुप में है। तो जो आइडिया समझ नहीं आते मेरे लेक्चर में, एक बात, या आप लोग बुक रीड कर रहे हो और वहां पर आप लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं आइडियाज, तो उसको वहां पर मुझसे पूछा करें। एक ही पोस्ट है और वो मैंने इसलिए रखा हुआ है एक ही पोस्ट कि हर बंदा इस क्लास का वहां पर जब क्वेश्चन करेगा तो बाकी मेंबर्स को भी उसका आंसर मिलेगा, तो इसका फायदा सबको होगा। क्योंकि कमेंट जब एक को आंसर दिया जाता है सबको मिल जाता है। तो रोजाना जो है आप लोग क्वेश्चन करें, रोजाना जवाब हासिल करें और इसी तरह जो है रोजाना अपनी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव करें। बाकी पार्टिसिपेशन जो है, रीडिंग भी रोजाना किया करें। एक बात, साथ में जो है वो जो बुक है वो कुछ मेंबर्स को बड़ा लेंथी लगता है, तो वो लेंथी तब होता है जब मैं 5 लेक्चर्स दूं और 6ठी लेक्चर में जो है टेस्ट होता है और तब आप बुक उठाएं, तब ये जाहिर बात है लेंथी होता है। लेकिन आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया और आपने इसी चैप्टर को कवर कर लिया, तो फिर ये बड़ी बात नहीं होती। फिर 1 घंटा क्लास लिया तो 1 घंटा रात को जो है इसको रीड करने के लिए दे दो, फिर कोई मसला नहीं होगा। सिंपल रूल्स एंड थियरीज लर्निंग इज नॉट डिफिकल्ट बट रियल टास्क इज टू अप्लाई हाउ। तो रियल टास्क तो यही है ना, जो मैंने आप लोगों को एग्जाम दिया था और इसमें से चंद ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो तब उसको जो है पता चल जाता है कि हाँ एक इंसान जो है जिसने पढ़ा है कितने पानी में है। किस तरह अप्लाई करेंगे जनाब, आपने
देख लिया, आपको पता चल गया कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। ठीक है, अब आपने पढ़ लिया कि सेनेट का फायदा नुकसान क्या है, तो आप इसको पाकिस्तान पर अप्लाई करें कि पाकिस्तान में इसको फायदा है या नुकसान है। अब आपने देख लिया कि हाँ पाकिस्तान में फायदा है, क्योंकि पाकिस्तान इज अ मल्टी कल्चरल, मल्टी लैंग्वेज, और दूसरा क्या है, मल्टी रिलीजियस कंट्री। तो यहां पर सब लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। एंड सेनेट, अपर हाउस, is the house where equal representation is ensured and given to every unit of the country. By unit I mean province. इवन माइनॉरिटी को भी जो है, औरतों को भी अपने कोटे दिए गए हैं सेनेट में, तो माइनॉरिटीज का भी ख्याल रखा गया है। तो ये उसका फायदा है। तो आप वहां पर अप्लाई करें और कहें कि सेनेट का जो बाइकैमरल सिस्टम है पाकिस्तान के लिए मौजू है, अच्छा है। इसी तरह जुडिशरी के फंक्शंस रीड कर लिए बुक में, अब आप इसको अप्लाई करें पाकिस्तान में, देखें कि पाकिस्तान में जुडिशरी क्या कर रही है, रूल ऑफ लॉ है या नहीं है, जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है, लॉ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, या जुडिशरी जो है अपने इख्तियारात से तजावुज कर जाती है या नहीं कर जाती। आप इसके लिए न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अगर देख लें तो वहां पर सब कुछ मौजूद होता है। रूल ऑफ लॉ लिख दें गूगल में और डॉन न्यूज़ या एक्सप्रेस ट्रिब्यून वगैरह कुछ लिख दें तो आपको रूल ऑफ लॉ पर एक आर्टिकल मिल जाता है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मिल जाता है। इसी तरह जो है आप वहां पर लिखें पार्लियामेंट्री सिस्टम इन पाकिस्तान और डॉन लिख ले, एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिख ले, कोई और नाम लिख दे जो न्यूज़ से हो या उसका एनालिसिस से ताल्लुक हो, तो आपको ये बताएगा कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम कामयाब है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो इसी तरह जो है आप अपना भी जहन इस्तेमाल करें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को भी साथ में इंक्लूड करें, या कोई जर्नल वगैरह अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां से भी आइडियाज उठाएं, कुछ अपने एक्सपीरियंस देख लें। ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं and you have to do it for yourself. अच्छा, लाइक पब्लिक ओपिनियन, प्रोपेगेंडा एंड प्रेशर ग्रुप, बिल्कुल ये आप लोग देख ले कि पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन की तो समझ आ गई, प्रोपेगेंडा की भी समझ आ गई, प्रेशर ग्रुप की भी समझ आ गई। तो आप प्रैक्टिकली देख लें पाकिस्तान में इस वक्त प्रेशर ग्रुप कौन से हैं, प्रोपेगेंडा क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आउट करें और फिर अप्लाई करें कि इसको फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ। सही, मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। करप्शन एक नाम इस्तेमाल हुआ 2013 में। 2013 से पहले के जो इलेक्शन में उसमें प्रोपेगेंडा इस्तेमाल हुआ था, या पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए जो फैक्ट्स इस्तेमाल किए गए, वो इलेक्शन लड़ा गया था 2013 से पहले। दैट वाज फॉट ऑन द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस लोग कहते जरदारी ने बिजली तबाह कर दी और मुल्क तबाह है और मैं बिजली का मसला 5 महीने में और 6 महीने में और फिर साल में और 2 साल में पूरे कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। कोई तो सारे के सारे लोगों ने नून लीग को वोट दिया। फिर पनामा केस आया 2013 के बाद और इमरान खान ने एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि मुल्क तो करप्ट लीडर्स ने खा लिया है, तो उसको एक पॉइंट मिल गया, पनामा से सबूत भी मिल गया और बस उसको इतना हाईलाइट किया गया कि बस आखिर में जो है लोग अब जरदारी को भी चोर समझते हैं, लोग जो है नवाज शरीफ को भी चोर समझते हैं और लोग जो है इमरान खान को वाहिद जो है तमाम मसाइल का हल समझने लगे हैं। ये क्या है, पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया गया कि मुल्क के सड़कों से नहीं बनती, मुल्क के मेट्रो से नहीं बनती, मुल्क के सीपेक से नहीं बनती, मुल्क बनती है करप्शन को जो है ख़त्म करने से, डॉलर को गिराने से, पेट्रोल जो है सस्ता करने से। ये प्रोपेगेंडा किया गया अगेंस्ट दीज मेंबर्स, अगरचे साबित ना हो सका, इवन उसको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। ये कौन, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई भी किया गया, लेकिन किस बिना पर, करप्शन के ऊपर। पैसे आए पाकिस्तान में, नथिंग। नेब ने कुछ अपना रोल अदा किया, नथिंग केम। बस जुडिशरी भी ने भी साथ दिया, नेब ने भी साथ दिया, ऊपर से कुछ और इदारे ने, और वो जो है उसके खिलाफ ये आखिरी जो 2 साल थे वो इस्तेमाल होता रहा और पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ और लोगों ने जो है इमरान खान को अपना लीडर मान लिया।
अब इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वो ये है कि महंगाई ज़्यादा है, वो ये है कि कभी उस पर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि यहूदियों का एजेंट है, कभी उसको कहा जाता है कि ये कादियानियों को जो है दोबारा ला रहा है। ये सारे प्रोपेगेंडे हैं, उसमें तो हकीकत नहीं है। कभी लोग सड़कों पर निकलते हैं, कल आप लोगों ने देखा कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको ब्लॉक किया गया था। अच्छा, हुमा खान, इज दैट नॉट ट्रू सर? देखो, ट्रू तब होगा जब उसको उस चीज पर सजा होगी, प्रूफ होगा, और जो है वो पैसे वापस आएंगे, सबूत होंगे। तो एक तो प्रोपेगेंडा होता है कि आप मुझ पर भी लगाएं, एक इल्जाम लगाएं और साबित ना करें, तो फिर तो वो ट्रू नहीं है। हनी नेब पर बात करेंगे, ठीक है। नेब किसके अंदर काम, सारे के सारे जो है वो तो एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं ना, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं। तो बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग पूछ ले मुझसे in that post. Have a nice time. Enjoy yourselves. Thank you.